and this is the Morning Express. Over the next 1 hour, we'll be taking you through all the updates that are happening in the country and across the globe as well. But starting with the most crucial news point today that we will be witnessing, since in West Bengal, the Panchayat polls are in fact underway, and we have seen how there had been several violent images that had come to light from West Bengal as well. But now we are looking at how voting is currently underway in West Bengal for the Panchayat polls. And in fact, we had seen how there were several statements that had been made by the governor as well. And of course, there were central forces as well that had been deployed on the ground to make sure that there are no untoward incidences when it comes to the law and order situation that had already been prevailing there in West Bengal. In fact, we had seen how there were sporadic incidents of violence. There were bombs that were being also taken from several pockets of the state as well, specifically in Murshidabad, where we had seen several crude bombs that had been taken, that had been seized by the authorities. And of course, we had seen the governor C.V. Ananda Bose as well claiming about talking about the violence, and had also stated that the authorities will have to take note of this entire incident. But as of now, we're looking at the Panchayat polls already underway, and the voting really begins. And we are looking at least 5.67 crore voters that are likely to, in fact, cast their votes today. And we have at least 928 seats across 22 Zilla Parishads and 9,730 Panchayat Samitis as well. And across these particular places, specifically in certain areas like Murshidabad, we had seen viewers in the run-up to the entire Panchayat polls weeks ago as well, how bombs had been recovered. There were several violent images that had come to light. In fact, those images we're putting out on your screens right now, as we had seen how fresh violence as well that had erupted in West Bengal. In fact, we had also learned, unfortunately, how one person had lost their life in these violent instances in the state of West Bengal as well. And viewers, we have our correspondents on the ground. I'm being told Madhu Kalpita is also joining us on the broadcast from the ground. Madhu Kalpita, if you can hear me, speak to us about this entire Panchayat polls, an overview for our viewers to understand, but specifically about the violence that had led to this Panchayat poll, around this Panchayat poll, so much so that the governor, in fact, had also taken note of it. एकदम देखिए, अभी तक जो खबर हमको मिल रहा है, अभी हम लोग मुर्शिदाबाद में हैं और मुर्शिदाबाद में अभी तक का जो अपडेट हमारे पास आ रहे हैं, अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा ही पता चल रहा है। एक जगह पे ऐसा हुआ है कि टीएमसी और कांग्रेस में क्लैश हो गया और उस क्लैश की वजह से एक आदमी का मौत हो गया। उसके बाद अभी जिस एरिया में मैं अभी हूँ, आप देख सकते हो, मैं तो दिखाना चाहूंगी जिस एरिया में मैं अभी हूँ, ये है रेजी नगर का नाजीरपुर इलाका। मैं और एक बार बोलना चाहूंगी, ये है मुर्शिदाबाद का रेजी नगर का नाजीरपुर इलाका है ये, और यहाँ पर ही आप देख सकते हो अभी यहाँ पर भी टेंशन जारी है। और यहाँ पर बॉम्बिंग हुआ है, उसका एलिगेशन आया है, और एक टीएमसी का जो लोग है उनका मौत हो चुका है, ऐसा ही पता चल रहा है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगी, मैं जिस इलाका में अभी हूँ, आप देख सकते हो कि इस इलाके में कोई भी अभी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सभी लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूंगी, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट देवब्रत को बोलूंगी एक बार ये जो तस्वीर है ये दिखाने के लिए। इस रास्ते से अगर सीधा जाते हैं तो लेफ्ट साइड में वो बॉम्बिंग होने का जो एलिगेशन है, वो बॉम्बिंग होने का एलिगेशन उधर ही आया है। और एक बात बहुत ही एक बात जरूरी बात मैं बताना चाहूंगी कि जहाँ पे ये बॉम्बिंग हुआ है वहां से वोट जिटर हो रहा है। मेरे मतलब है कि जिस स्कूल में अभी वोट चल रहा है, जिस स्कूल में अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़ी हुई है वोट के लिए, उस स्कूल से 30 मीटर के अंदर ही बॉम्बिंग हुआ है, ऐसा ही एलिगेशन आया है। और उधर अभी भी जो ब्लड पड़ी हुई है, और वहाँ के जो लोग हैं जिनका मौत हो गया है, याशीन शेख, उनके फैमिली के जो लोग हैं, उनके वाइफ है, सब लोग एलिगेशन कर रहे हैं कि कल रात को याशीन शेख वो फैमिली के जो लोग हैं, उनके वाइफ है, सब लोग एलिगेशन कर रहे हैं कि कल रात को याशीन शेख वो घर से निकले थे। घर से निकलने के बाद थोड़ा काम के लिए बाहर गए थे, उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे, कुछ खाने के सामान लेके वापस आ रहे थे, तब किसी ने उनके ऊपर बॉम्बिंग किया है, ऐसा ही एलिगेशन आ रहा है। और उधर से जब मैं जहाँ पे
वोट चल रहा है जिस स्कूल में, उधर से वोट का वो जो स्कूल है 30 मीटर के अंदर ही है, वो 30 मीटर के अंदर ही ऐसा बॉम्बिंग हुआ है जिसके वजह से एक टीएमसी सपोर्टर का मौत हो चुका है। ये गया है ये रेजी नगर जहां पर मैं अभी खड़ी हूँ। यहाँ के बाद पे यहाँ की तस्वीर मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। और इसके पहले और एक जगह था जहां पर मैं कुछ टाइम पहले गई थी, बेलडंगा, मुर्शिदाबाद का बेलडंगा, जहां पर भी कल रात से लगातार वहां पे वायलेंस जारी है। ऐसा आ रहा है, एलिगेशन आ रहा है कि वहां पर एक टीएमसी का जो सपोर्टर है वो घर से बाहर आए थे, घर से बाहर किसी काम के लिए आए थे और वहां पर ही उनको मार दिया गया है। ऐसा ही एलिगेशन आ रहा है, ऐसे एलिगेशन कर रहा है जो टीएमसी के सपोर्टर्स है वो लोग, एंड जो वहां के फैमिली मेंबर्स है वो लोग अभी ये बता रहे थे कि कल रात को 7 या 8 बजे के बीच में ही वो जो आदमी थे बाबर अली, वो घर से बाहर आए थे कुछ काम के लिए। घर से बाहर आने के बाद वो घर में वापस जा रहे थे, अचानक से उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमला चला दिया जिसके वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया और जख्मी होने के बाद ही वहां पर ही स्पॉट ही उनका मौत हो गया। ऐसा ही एलिगेशन आ रहा है। और जिसका घर में ये हुआ है, मैं एक बार मेरी वीडियो जर्नलिस्ट देवब्रत को बोलूंगी कि यहाँ से हम लोग जहाँ पर अभी भी है वहां से थोड़े निकलने के लिए मैं बोलूंगी, मैं दिखाने की कोशिश करूंगी आपको कि यहाँ से थोड़ी देर निकलने के सामने जाने के लिए मैं बोलूंगी। बस मैं एक बार बोलूंगी कि यहाँ से जो हमारा गाड़ी है यहाँ से मैं थोड़ी देर सामने ले जाने के लिए बोलूंगी। मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, आप देख सकते हो ये जो एरिया है यहाँ पर कल रात से लगातार वायलेंस चल रहा है, ऐसा ही एलिगेशन आ रहा है। आप देख सकते हो इधर पे जो लोग खड़े हैं ये लोग सब डरे हुए हैं और इन लोगों का जो ये लोग जो बता रहे हैं, इन लोग जो एलिगेशन दे रहा है कि कल रात से लगातार यहाँ पर सारे जो सपोर्टर्स है टीएमसी सपोर्टर के ऊपर कांग्रेस और कांग्रेस सपोर्टर के ऊपर टीएमसी, मतलब दोनों तरफ से ही लगातार यहाँ पर जो अटैक हुआ है वो बता रहा था यहाँ के लोग आप लोग देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी भी यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा जारी हुई है। अभी 1 घंटा पहले यहाँ पर बॉम्बिंग हुआ है, ऐसा ही सुनने को आ रहा है। और एक जो इलाका था जहाँ पर मैं कुछ टाइम पहले गई थी जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, बाबर अली नाम का एक सपोर्टर जो घर से बाहर निकले थे और उनको बुरी तरह से मार दिया गया है। और ये हुआ है कल रात को 12 से 1 बजे के बीच में ये हुआ है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आज सुबह जब वहां पर मैं गई थी उसके घर में जहाँ पे ये हुआ था वो घर पूरा खाली था, कोई भी इंसान नहीं थे। वो लोग के पीछे के एक घर में थे और वहां से वो लोग बार बार बोल रहे थे कि वो लोग कह रहे कि ये कैसा वोट है जिस वोट में इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है, घर से इंसान निकलने के लिए डर रहा है, ये वोट उन लोगों को नहीं चाहिए, बार बार ये बोल रहा था। बिल्कुल मधुकल्पिता, और बताइए जो आप मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखा रही हैं हमें, मुर्शिदाबाद में अब और क्या अपडेट है? क्या अथॉरिटीज ग्राउंड पे पहुंच गई हैं? क्योंकि कई सारे जो क्लैशेस आप दिखा रही हैं कि अभी भी क्लैशेस हो रहे हैं वहां पे ग्राउंड पे, तो अथॉरिटीज ने क्या इस चीज का कॉग्निजेंस लिया है? क्या अपडेट है अथॉरिटीज की तरफ से? अभी देखिए मैं एक बात पता, সোজা তো এবার জিজ্ঞেস করো না বাস দাদা হাইওয়েটা সোজা তো, ন্যাশনাল হাইওয়েটা সোজা তো, হাইওয়েটা जिन जगह में क्लैश हुआ है, मुर्शिदाबाद का डोमकॉल है, टच बैक बेस अगेन विद मधुकल्पिता, जहाँ पर वायलेंस हुआ है वहाँ पे जो लोकल पीपल है वो लोग बता रहे थे कि उन लोगों ने बार बार पुलिस को बताया था, बार बार उन लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी सहयोगिता नहीं मिला है। ऐसा ही एलिगेशन वो लोग दे रहा था। एंड वो लोग बोल रहे थे कि जब से कल रात से जितना भी टेंशन यहाँ पर जारी हुई है, उतना टेंशन के बाद उन लोगों ने बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि आप लोग इधर आ जाओ, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिला है। ऐसा ही एलिगेशन ला रहा था जो वहाँ पर जो लोकल पीपल है। तो आज सुबह जब हम लोग वहां पर गए थे, जब बाबर अली के फैमिली के पास जब हम जा रहे थे, तब जाके पुलिस आया और पुलिस के सामने ही उन विक्टिम के जो फैमिली है वो लोग बता रहे थे कि कल रात को अगर पुलिस आ जाता, अगर कल रात से पुलिस एक्टिव हो जाता तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता। और अभी आप देख सकते हो मैं जिस इलाके से जा रही हूँ ये नजीरपुर है, रेजी नगर है नजीरपुर, इधर वोट चल रहा है, लेकिन इधर पे 2 साइड में आप देख सकते हो कोई भी लोग अभी नहीं है।